Hey guys, this is Chani and welcome back to my channel. And today we have Dr. Prachi Katyal with us, who is going to put light on oral health and its importance. And this is often very neglected thing, but personally I think that we should not neglect this, and therefore I have called my friend Prachi and she is going to put some light on it, importance of oral health and its significance. So let's welcome her and let's see what she has to talk about it. Hi Chandni. Hi everyone. I am Dr. Prachi Katyal. I am a practicing prosthodontist and implantologist. I have been in clinical practice now for more than 10 years. So I think it's most important in this scene of pandemic that we take care of our teeth and our mouth, because now we cannot visit the dentist so often. So, and Chandni will talk about it. Hope you like it. Yeah, I hope more than me liking it, I hope it should be that informative that everyone should get some lights of it, and people should actually, after this video, they should actually start taking care of their mouth more prominently than before. Yeah, of course. The aim of making this video is the same, that people should take more care of their teeth. So, Prachi, can you tell us what exactly is oral health and how significant it is? See, we usually think that our oral health means only the health of our teeth, right? But actually it is not limited only to teeth. So we should be more concerned, along with teeth, the oral structures or the oral organs. The organs inside your mouth, like gums, cheek, lips, tongue and your palate, they are as important as your teeth. So any redness, any bleeding, any soreness in any of these structures may show that there is some underlying cause, there is some other problem which is either in your body or in your mouth, but which is presenting like bleeding from the gums or soreness in your cheek or redness of your tongue. So all these structures are really important, along with teeth also. I mean, why do you think that it is neglected part? Not even these days, from beginning, I guess I have not seen like many people taking care of their oral health. Why it is so? Why do you think that there is this a gap? People long back have been taking it for granted that in case I can chew with my teeth are fine, and even if we have a little or less bleeding, then maybe it's fine, I'll rinse my mouth, it will be fine. But no, it is not going to be fine on its own. There is some problem, and I think because our food has changed, the quality of food, the type of food has drastically changed. You see more of refined food, less of roughage, less of fibers in our diet these days, which let us have our food more easily. So maybe that is the reason that less focus on our oral health has been there. But these days I am seeing in maybe in bigger cities, in metros or in tier 1, tier 2 cities, we see that people are now much more enlightened about oral health, about looks, about the gum health, about the teeth health. So I feel there is now we can see the change around the corner. So there are many, I have heard that many surgeries and some smile ornaments also have come up, right? Yeah. There are a lot of smile enhancement or smile makeover procedures for people who do not like their original smile. So now these days, dentists can give them, fabulous and the smile of their own choice. You can bring a picture of any actress that you want it to smile like this. Maybe your dentist can replicate that for you. I remember that I visited your clinic once and there was this beautiful picture with some
piercing also with Yes. the smile. Yeah, Yeah. those were the Yeah, diamond. that's move on trend, yes. So if you're happy with your smile and if you just want to add a bling to it for a change, so you can get a tooth jewelry done. So it is non-invasive. We don't do a hole in it on your teeth, and we can just paste it on your teeth, and it gives a very distinct shine to your smile. Yeah, that's really, I mean, very advanced and very interesting as well, right? It's a very small outpatient procedure, and it's really fancy thing, Okay. Young girls these days, they are very much interested in that. So Prachi, since we are talking about oral health here, so is there any specific way to brush our teeth? Are we lacking somewhere? I mean, you might have gone through some cases there where you might have felt that people, they don't have even proper sense of brushing their teeth. So can you just put some light on it and how important it is to brush your teeth in a proper way? See, Chandni, it is very important. See, one thing is to brush your teeth, and another thing is to brush it properly so that you don't damage your teeth. We are brushing our teeth to make them healthy. So the brushing should be in such a way that we do not destroy the existing structure or existing enamel of our teeth. So I'll give you a demonstration for our viewers also, so that if they are missing out on something, they can grasp something from here. Okay, I mean, that is just one thing, Prachi. If you can explain that in Hindi, it would be nice, no? Okay, yeah. Even better Yeah. for all the viewers. सो ये हैं हमारे दांत, ठीक है. ब्रश हमेशा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ही इस्तेमाल करें. मीडियम ब्रश, आपको लगेगा आपके दांत ज़्यादा साफ हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा हार्ड ब्रश आपके दांत ज़्यादा साफ करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. उल्टा वो आपके दांत डैमेज कर सकता है. सो ब्रश हमेशा आधा ऊपर की तरफ रख के, आई होप इट इज विजिबल फॉर एवरीबॉडी, नीचे की तरफ पुश करें ऊपर के दांतों के लिए, ऊपर से नीचे की तरफ. और वही नीचे के दांतों के लिए नीचे से ऊपर की तरफ. इस तरह से ना दांतों के आसपास के मसूड़े खराब होंगे और ना दांतों के इर्द गिर्द कोई छेद बनेगा. अगर आप इस तरह से ब्रश करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके दांतों में के साइड पर या उसके ऊपरी एरिया में ज़रूर वहाँ छेद या डैमेज हो सकता है. ये लॉन्ग टर्म के लिए है. अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ पुश नहीं कर पा रहे हैं दांतों को, तो धीरे धीरे गोलाई में घुमाइए अपना टूथब्रश और फिर साफ करिए. इस तरह से भी आपके दांत डैमेज नहीं होंगे, ठीक है. और एक चीज, सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है. ब्रश जब आप करते हैं तो सिर्फ बाहर और अंदर का सरफेस, जो दांत के ऊपर का जो सतह है, उसका सारे दांत में से सिर्फ 60% हिस्सा ही आप साफ कर रहे हैं. बचा हुआ 40% हिस्सा वो है जो आपके दांतों के बीच है. दो दांतों के बीच का जो एरिया है वो करीबन 40% है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं या जिसको हम साफ नहीं करते हैं. उन्हें साफ करने के लिए आपको कुछ इस तरह का फ्लॉस यूज करना है. ये दांतों के बीच में जाकर उसे साफ करेगा. तो जो बचा हुआ एरिया है, यानी कि वो 40% जहां पर आपका टूथब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां ये फ्लॉस पहुंचेगा. सो मुझे लगता है कि शायद आई कुड एक्सप्लेन इट, सो इट्स ओके. तो ये जो आपने बताया वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है? बहुत इजीली अवेलेबल है. बहुत सारी ब्रांड्स इसे ऑफर करती हैं. अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते, ये डिस्पोजेबल है, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता, थोड़ा एक्सपेंसिव है. सो आपको ऐसी
ओरल बी, कोलगेट, थर्मोसील, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये ऑफर करती हैं। इसके अंदर डायरेक्टली थ्रेड अवेलेबल है, समथिंग लाइक दिस। The cost ranges from 150 to 200 rupees for this Okay. one, and it has around 50 meters of thread, which is going to last very long for you. Yeah. Okay, so you can wrap it around your finger. इस तरह से दोनों उंगलियों के ऊपर लपेट के उसे आप दांतों के बीच में डालकर निकाल सकते हैं। डालिए और निकाल लीजिए इस तरह से। तो वो दो दांतों के बीच की जो जगह है उसे अच्छी तरह से साफ करेगा। तो ये हर्ट तो नहीं करता है ना? नहीं, इससे कोई तकलीफ नहीं है। आराम से जेंटली आप अंदर पुश करेंगे। आपके दांतों के बीच में इतनी जगह जरूर होती है, हर समय होती है कि वो इजीली अंदर चला जाए और निकल जाए। ओके। हम हमेशा ही सुबह ब्रश करने की बात करते हैं, हम सब करते भी हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो रात को ब्रश बिल्कुल नहीं करते हैं। उसका इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता। मैं भी बहुत टाइम तक नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं इनसे मिली हूँ, इन्होंने मुझे इसका इम्पोर्टेंस बताया है, तो मैंने भी चालू किया है। जानते हैं हम इनसे कि एग्जैक्टली इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो प्राची, आप बता पाएंगे कि रात को ब्रश करना कितना इम्पोर्टेंट है? हम सुबह उठ के तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम रात को भी कर रहे हैं और फिर इमीडिएटली सुबह भी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उससे क्या होता है? चांदनी, मेरा मानना है कि सुबह की ब्रशिंग जो आप कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें हमारे मुंह से बदबू ना आए। पर जो रात की ब्रशिंग है वो आप अपने लिए कर रहे हैं। जिस तरह आप रात को सोने से पहले अगर आप अपना फेस अच्छी तरह से वॉश करके सोएंगे, तो हमें ये बात पता है कि हमारा फेस उस समय रेस्ट कर रहा है, हमारे फेस की स्किन रेस्ट कर रही है, तो हमारे फेस को भी रेस्ट चाहिए, हमारी स्किन को भी, टू रिवाइटलाइज। ठीक है, सिमिलर इज आवर टीथ, गम्स और टंग। हर चीज को वो जो 8 घंटे की नींद का पीरियड है, उस समय ना हम कुछ खा रहे हैं ना हम कुछ पी रहे हैं, तो अगर आप अपने दांतों को ब्रश करके या क्लीन करके या अपनी टंग को क्लीन करके नहीं सो रहे, तो जो भी आपने खाना खाया है वो उन 8 घंटों तक अनडिस्टर्ब्ड आपके दांतों पर चिपका रहेगा, जिसकी वजह से आपके दांतों में टेंडेंसी टू हैव कैविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वही काम अगर आप सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, इवन इफ आप बिना टूथपेस्ट के करना चाहें, सिर्फ एम्प्टी टूथब्रश से आप ब्रश करना चाहते हैं, बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो ऊपर की सतह पे लगा हुआ खाना है वो निकल जाएगा। सिर्फ दांतों पे ब्रश करना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं लेकिन हमारे मुंह की बदबू नहीं जाती। उसका रीजन ये है, आपने दांतों पे तो ब्रश कर लिया, बट आपने अपनी जीभ या जुबान या टंग उसको क्लीन नहीं किया। हमारे यहाँ बहुत पहले से, बहुत जमाने पहले से टंग क्लीनर्स अवेलेबल है। तो वो जो टंग क्लीनर्स हैं उसमें स्टील या ब्रास के अवेलेबल होते हैं, तो जिनसे हम खींच के टंग क्लीन करते हैं। पर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो आपके जुबान पे या जीभ पे टेस्ट बड्स हैं, स्वाद की जो बड्स हैं जिनकी वजह से आपको टेस्ट आता है, वो डैमेज हो जाती है धीरे धीरे। तो आपको सेंस ऑफ हॉट, कोल्ड, मीठा, नमकीन, उसका सेंस धीरे धीरे चला जाता है। उसकी जगह अगर आप अपने टूथब्रश से डायरेक्टली अपनी टंग साफ करेंगे, तो एक तो आपको एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं खरीदनी है अपनी टंग को क्लीन करने के लिए और उसे मेंटेन नहीं करना। दूसरा, आपके ब्रिसल्स सॉफ्ट है टूथब्रश, तो वो आपकी टंग और उसकी जो टेस्ट बड्स हैं उसको डैमेज नहीं करेंगे। तो जब भी ब्रश करें, मेक श्योर कि आप अपना टंग जरूर क्लीन करें। तो मेरे हिसाब से आज तक मैंने जो देखा है, माउथ से जो बैड ब्रेथ या जिसे हम हैलिटोसिस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसकी कंप्लेन काफी कम हो जाती है। Okay, and this is very informative, Prachi, and
मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था कि टंग क्लीनर, मुझे लगता था कि एक अच्छी ही चीज़ है और उससे कुछ हानि नहीं हो रही हमें, पर हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वाकई ये एक क्योंकि बहुत हम अच्छी रात चीज़ को नहीं कुछ है। कर पाते हैं ना, तो वो ऊपर की जो सेल्स हैं वो साथ साथ में निकलते जाते हैं, तो धीरे धीरे थिनिंग होने लगती है वहां पे हमारे टिश्यूज की। तो इसी वजह से इट्स बेटर अगर आप अपना टूथब्रश यूज करें। Okay, thank you Prachi for this information. This is very important and beneficial. सभी को ही इसका लाभ मिलेगा। एक चीज जो एक चीज जो मैंने देखी है, कई बार ऐसी कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनके मे बी ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते होंगे, लेकिन उनके स्पेसिफिकली खाने से मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी या हर किसी का माउथ सेम तरह से बना हुआ है। जैसे एक पर्सन अगर किसी चीज से एलर्जिक है और दूसरा पर्सन उस चीज से एलर्जिक नहीं है, तो जैसे हमारी बॉडी डिफर करती है, सेम चीज है हमारे माउथ के साथ भी। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर चीज किसी को सूट करती है और एक पर्टिकुलर चीज किसी को सूट नहीं करती है, एक ये रीजन हो सकता है। अदरवाइज जो बैड ब्रेथ है उसका मेजर रीजन होता है कि क्लेanलीनेस, पर किसी पर्टिकुलर चीज से अगर माउथ में प्रॉब्लम है तो कई बार ये होता है कि वो चीज इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपकी बॉडी में, एक ये रीजन जरूर है। तो आपको लगता है कि जो हमारे फूड हैबिट्स होते हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं? डेफिनेटली देयर आर सर्टेन फूड्स जो कि हमारे दांतों को डैमेज करते हैं एट एवरी लेवल। जैसे स्वीट्स हमें पता ही है कि मीठी चीज़ें ख़राब करती हैं, उसके साथ में कुकीज़ या फिर रिफाइंड फ्लावर या एरेटेड ड्रिंक्स अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो एट एनी लेवल, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो आपके माउथ का पीएच बहुत ही लो कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा। जो भी एसिडिक कंटेंट जब बढ़ता है तो आपके दांत धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगे या घुलने लगेंगे। उसकी वजह से आपको कैविटेशन का डर या सेंसिटिविटी का इशू एक बहुत बड़े लेवल पे फील होने लगेगा एंड आपके लिए मीठा, खट्टा, ठंडा या गरम खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ है, जैसे कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ आम घरों में आंवला खाया जाता है यानी कि गूसबेरी, उसके बहुत अलग अलग फॉर्म्स हमारे इंडियन हाउस होल्ड में अवेलेबल होते हैं। जैसे आंवले की कैंडी अवेलेबल है या ड्राइड आंवला पीसेस अवेलेबल है। तो यूजुअली वी थिंक कि हमें विटामिन सी की कमी पूरी करनी है तो हम आंवले का पीस मुंह में रख लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें लोगों को आदत है एक पर्टिकुलर दांत के ऊपर आंवला रख के पूरे दिन वो अपना काम कर रहे हैं एंड दे इवन फॉरगेट अबाउट इट। बट धीरे धीरे उस पर्टिकुलर दांत में घुलते घुलते वो एक छेद सा डेवलप हो जाएगा जो इस आंवले के छोटे से टुकड़े की वजह से हुआ है। तो डेफिनेटली ये फूड आइटम्स हैं जो जिनसे हमें बचना ही चाहिए। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव प्राची। ये अभी हमने नेगेटिव फूड आइटम्स की बात की, आप कुछ पॉजिटिव फूड आइटम्स बता सकते हैं जिन्हें लेने से हमारे ओरल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा? डेफिनेटली आप ऐसे फ्रूट्स या फूड्स या वेजिटेबल्स जिनमें हाई फाइबर कंटेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया सैलड्स, गाजर, कुकम्बर यानी कि खीरा और चुकंदर या इवन रैडिश यानी कि मूली, ये ऐसे सैलड्स हैं जिनको आप च्यू करेंगे तो ये एक सेल्फ क्लेंजिंग इफेक्ट देंगे आपके टीथ पे एंड जो लगा हुआ खाना है वो इनके साथ साथ रिमूव हो जाएगा। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल वगैरह, जब आप बाइट करते हैं उन एप्पल पे तो एक जो ऊपर की लेयर है वो उसके साथ साथ उस बाइट के साथ रिमूव हो जाती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपके बोन स्ट्रक्चर को हेल्प करते हैं। सिर्फ टीथ के बारे में नहीं सोचना है हमें, टीथ जिन
जिस बोन में, जैसे ये टीथ जिस बोन में फिक्स्ड है उस बोन की हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो हेल्थ हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगी। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप मिल्क पी रहे हैं तो मिल्क पीने के बाद सीधा सो नहीं जाइए, ज़रूर ब्रश करिए, तभी वो जो मिल्क का लैक्टोज है वो रिमूव हो जाएगा एंड देन ओनली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो प्राची, आप ऐसी कुछ प्रिकॉशनरी टिप्स बता सकते हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारा जो ओरल हेल्थ है वो हमेशा के लिए बेटर रहे, आई मीन मैक्सिमम टाइम, कम से कम हमें अपने जो नेचुरल चीजें हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके साथ हमें कम से कम खिलवाड़ करनी पड़े, तो ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इफ यू कैन गिव। ऑफ कोर्स चांदनी, सी इन दिस पीरियड ऑफ पैंडमिक, ये जो सिनेरियो चल रहा है, इट इज़ स्केरी फॉर एवरीवन, फॉर पेशेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द डेंटिस्ट ऑल्सो। सो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपने ब्रशिंग करनी है ट्वाइस डेली एंड फ्लॉसिंग करनी है। ये ईदर और नहीं है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग ट्वाइस डेली और फ्लॉसिंग एटलीस्ट एट नाइट, सो दैट वो 8 घंटे आपका माउथ, आपके टीथ, आपके गम्स, आपकी टंग रेस्ट कर सके, हील कर सके। ऑल्सो इन केस आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है गम्स से या गम्स स्वोलन है, so you can try some gum astringents which are easily available in market and you can massage your gums। अपने gums की मालिश कर सकते हैं, अपने मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं आप उस ऑइंटमेंट के साथ। और इन केस आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक आपने माउथ वॉश यूज़ नहीं करना है। माउथ वॉश हमेशा क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड माउथ वॉशेज़ यूज़ करिए, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ओरल हेल्थ के लिए, आपके टीथ, आपके गम्स के लिए हेल्पफुल हैं, हीलिंग है। एंड इन केस आप माउथ वॉशेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे रिंसेस ज़रूर करिए, वो आपको एज गुड एज एनी क्लेंजिंग इफेक्ट देगा, आपकी रेगुलर ओरल हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। एंड टूथपिक या पिन लाइक शार्प ऑब्जेक्ट से अपने दांतों को क्लीन नहीं करें, वो आपके मसूड़ों को नीचे पुश करेंगे, आपकी जो बोन है, जिस बोन में आपके दांत फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे घुल जाएगी, तो आपके दांतों में ज़बरदस्ती छेद कर सकता है टूथपिक्स या पिन्स, या आपके मसूड़ों को डैमेज कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अपने टीथ को घर पे ही मेंटेन कर सकते हैं, अपनी माउथ को घर पे मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट आपको कम से कम विजिट्स करने पड़े इस पैंडेमिक की सिचुएशन में। हम इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो खाना बाद में खाते हैं और टूथपिक उनके हाथ में पहले होती है, तो आई होप उनको ये हेल्प करे और वो समझें कि एक्चुअली दिस इज़ वेरी हार्मफुल। आप हमेशा टूथपिक के साथ आप नहीं घूम सकते। और हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं प्राची, तो आप बताएंगे कि सपोज अगर हमें जाना भी पड़ रहा है, क्योंकि कोविड हम मास्क पहनने की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मुंह पे अगर टच होता है तो उससे फैलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हमें एज अ पेशेंट अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें इमरजेंसी में सपोज क्लिनिक विजिट भी करना पड़ रहा है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हमें किसी डेंटल क्लिनिक में जा रहे हैं, प्लस एक हमें ये भी अगर आप बताएंगे कि एक डॉक्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे लिए वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। हाँ ज़रूर चांदनी, सी एज अ पेशेंट और एज अ डॉक्टर रिस्क पे दोनों ही हैं, दोनों ही एट रिस्क है, क्योंकि जब आप बाकी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने अपना मास्क नहीं उतारा है, बट जब आप एक डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मुंह पे आपका मास्क नहीं रह सकता, बिकॉज डेंटिस्ट आपके मुंह के अंदर काम करने वाले हैं, तो आपको मास्क उतारना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करें, मेक श्योर कि वो एडिक्वेट प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर यूज़ कर रहे हैं, एंड आपके लिए भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन्होंने दिया हुआ है,
प्रॉपर टेम्परेचर चेक्स हो रहे हैं और सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोटोकॉल है उनके पास। एंड ऐसे डेंटल ऑफिसेज हैं जहाँ से एयर सर्कुलेशन प्रॉपर है। बंद कमरे में आप ये वायरस बहुत देर तक रह सकता है, तो मेक श्योर कि आप ऐसे ही डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं जो ये सारी मेंटेनेंस रख रहे हैं। एंड ऑल दी इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर सैनिटाइज्ड प्रॉपर्ली, स्टरलाइज्ड प्रॉपर्ली एंड आर इन सील्ड पैक बैग्स, ताकि आपके सामने वो ओपन हो सो दैट इट इज़ नॉट हैंड टच्ड। मुझे लगता है ये सारे प्रिकॉशंस के साथ आप इन्फेक्शन के रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज कर लेंगे। और डेफिनेटली डॉक्टर जब भी आपके जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर्स भी आजकल काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बिना टेम्परेचर चेक्स, बिना पल्स ऑक्सीमीटर से आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स चेक किए बिना, और बिना सैनिटाइजेशन के, बिना आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक gloves and head cap and footwear cover for the patient. These are for the patient so that the patient is not coming in contact with any of the outside or the clinic के surroundings के साथ वो नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें important हैं, तो आप definitely ये सारी चीज़ें चेक करें, अपने डॉक्टर से बात करें, मिलने से पहले, डॉक्टर की क्लिनिक विजिट करने से पहले उनसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लें, प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पे बात करके उनके पास जाएं, सो दैट वो आपको वेटिंग एरिया में वेट ना करना पड़े और आप दूसरे पेशेंट्स के कांटेक्ट में ना आएँ। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके डेंटिस्ट के लिए हेल्पफुल हैं। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव प्राची, एंड आई होप ये सबको हेल्प करे। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आज आपने हमें दी है यहाँ पर, और आई जस्ट विश कि लोग इसे अच्छे से सुने और इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें अपने लाइफ में। हमारे viewers are going to take a lot of interest in this and it is going to help them to safeguard their own self and their beloved dentist. Yeah, definitely yes. So आप लोगों को अगर कुछ और ओरल हेल्थ के बारे में जानना है जो आपको लगता है कि शायद हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि प्राची रिप्लाई करें। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके हैंडल्स भी मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और ये ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हैं, तो आप उनके पेज में जाके भी आप उनको पिंग कर सकते हैं एंड I'm sure Prachi will reply to it. Definitely. For all my viewers, if उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मुझसे बताना रह गया है and they still have doubt, you can reach us at below mentioned web address and on Instagram and on Facebook as well. And I would request all of you to please like and subscribe this video and the channel of Chandni, because she is totally awesome, or she has been taking a lot of pain to compile all of this for all you viewers. So please go ahead and like it and subscribe and share it. Thank you. Thank you Prachi for this, and I mean seriously thank you, and I'm very grateful that you have given your precious time to me and to my channel and to help everybody here who is going to watch this video. And I'm literally overwhelmed because you have given such nice and minute information and details that we were missing out in our life. So I hope it really helps everybody. So with this I end my video here, and have a nice day.